Yes. Okay, all of you, welcome to the session. Welcome to this live session. We are going to discuss here CMAT 2024 English actual paper analysis. कौन से questions थे? This all questions are based on basically memory based questions है. तो जो भी क्वेश्चंस आपको पता रहेंगे कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, सो वी कैन गिव द सॉल्यूशन ओवर हियर. मूविंग अहेड, हियर इज दी ऑल पूरा पेपर का जो एक सेग्रीगेशन था क्वेश्चंस का. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 5 क्वेश्चंस थे. देन इफ वी टॉक अबाउट एंटोनिम एंड सिनोनिम, देयर इज एंटोनिम एंड सिनोनिम पार्ट. तो उसके भी एंटोनिम का एक क्वेश्चन था, फ्रेज मीनिंग का 1 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का 1 क्वेश्चन था. एंड देन इट इज ऑल अबाउट, then active voice and passive voice is there also one. Then match the pairs, word uses, one word substitution is there, odd man out का एक क्वेश्चन था, and other are to 8. तो total 20 मार्क्स के लिए 20 पूरा पेपर इंग्लिश सेक्शन में था. Then moving ahead guys, here are the social media handles. You can follow us on Instagram, you can follow us on Facebook. Also, if you want to join us on a Telegram and a WhatsApp, you can join there. Don't forget to subscribe the manual education channel. And here all the 2025 batches are launched, so you can join the live batches. And also if you are preparing for the 2025, you can join there. You are preparing for the CAT, SNAP, ZAT, CMAT, CET, whatever the MBA or CMAT management exam you are appearing, you can join the live classes. Expert faculty would be there to guide you, to give you the all the guidance for the exam and preparation. So guys, moving ahead towards the paper, here is the reading comprehension. ये reading comprehension था basically. Questions exactly questions कौन से है, we are not exactly known about this, but RC is there. And अगर आपके पास अगर questions है, so put it in the comment box so we can give you the answers over here. Moving ahead, next is a antonym, obligatory antonym था guys, and the answer is basically voluntary. Voluntary should be your correct answer, because obligatory जो होता है that is necessity, एक चीज necessary है तो उसे हम लोग obligatory कहते हैं. तो obligation is what, कि यहाँ पे necessity है, तो necessity मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए basically यहाँ पर, it should be voluntary. एंड वॉलेंटरी का मतलब आप खुद से कर रहे हो, एंड नेसेसरी मतलब क्या हुआ कि ये कोई आपसे करवा रहा है, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी वॉलेंटरी. मूविंग अहेड, हियर इज ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट, यहाँ पे ऑड मैन आउट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको, एंड फ्रेजेस में से आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है. अब बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये वर्बल फ्रेजेस है, और यू कैन से फ्रेजल वर्ब है, एक ऐसे भी बोल सकते हो कि ये फ्रेजल वर्ब है. अब फ्रेजल वर्ब में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कौन सा फ्रेजल वर्ब होता है और कौन सा फ्रेजल वर्ब नहीं होता है. तो यहां पर होल्ड हाई जो है ये कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, इट इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, हियर इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका a speech delivered without any previous preparation, basically it is what, it is extempore इसका right answer होना चाहिए, because maiden, novel, extraordinary, these are the all different type of words, इनका इससे कोई relation नहीं है, so extempore would be the correct answer, a speech delivered without any previous preparation. Then phrase meaning था यहाँ पर, it's not exactly the phrase meaning, but getting for me is the phrase over there. तो इसका meaning actually ये होता है कि someone helps other, कोई एक person जो है वो दूसरे person को help करता है to acquire something. That is the basic meaning of getting for me. तो ये एक meaning था. Otherwise इसके regarding जो भी question है वो एक बार put down करना comment box में, so we can reply on that. Then moving ahead, there are the match the pairs. Match the pairs में कुछ लैटिन टर्म्स थे. इंटरेस्टिंगली यहां पर सीमैट के पेपर में इन्होंने कुछ लॉ के टर्म्स पूछे हुए हैं. बेसिकली ये लॉ के टर्म्स हैं एंड लैटिन टर्म्स है. दिस आर द लैटिन टर्म्स
जो इसका मतलब होता है एलिबी। एलिबी का मतलब एक प्ली का मतलब एक स्टेटमेंट या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट बोलना जो कि ये प्रूव कर पाए कि आप गिल्टी नहीं हो, आप इनोसेंट हो, आपने कोई गलती नहीं की हुई है। एक्स पार्टे का मतलब होता है एक तरीके की डिग्री होती है फॉर दी वन पार्टी, मतलब देयर वुड बी ओनली वन पार्टी एंड यू आर गिविंग द डिसीजन, आप डिसीजन दे रहे हो, दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड एज एक्स पार्टे डिसीजन। देन दे आर टॉकिंग अबाउट लेक्स लॉकी। लेक्स लॉकी में यहां पे लॉकी का मतलब होता है लैंड एंड लेक्स का मतलब बेसिकली इट्स अ लॉ, so that is law of a land and the other one is quod pro quo। quod pro quo का मतलब होता है यहां पर something for something, so that is मतलब कुछ ना कुछ in return आपको मिलना, तो that is something for something, quod pro quo। मूविंग अहेड, यहाँ पे एक चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड चेंज इनटू द पैसिव वॉइस था, दैट इज बेसिकली चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दिया था गाइस, देखो लास्ट इन दी जो मैन्योर में जो लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड किया, लाइव सेशन अटेंड किए हैं, तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो आपको समझना पड़ता है, ऑलवेज वुड नॉट बी दैट अभी यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस इंस्ट्रक्शन रहेगा नहीं रहेगा ये डेफिनेट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए विच सेंटेंस इज द एक्टिव एंड विच वन इज द पैसिव वन, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओनली अपॉन दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज आपको अगर यही नहीं पता कि एक्टिव है कि पैसिव है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो बेसिक यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस था एंड आंसर वुड बी व्हाट, दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज अ सीन एवरीवेयर, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो गाइज this is all about the CMAT English section analysis. This type of questions are there. Paper, if I can say paper easy था, it's not that difficult to solve. RC would be somehow थोड़ा सा moderate level पे था, but it's not that difficult to solve. आप easily score कर पाओगे. If I'm saying 20 to 20 out of 18 or 17 maybe would be easy part. हो सकता है आप solve कर सकते हो अगर आपने practice की होगी, vocab पे ध्यान दिया होगा, तो बहुत ज़्यादा easy है to solve. So again guys, share this session with the other friends so they can get the answers, and don't forget to subscribe the channel so you would get update regarding the upcoming videos and all of the entrance exam.